2771st episode of India's most happening Facebook live show का नाम है राज की बात Women of the Year के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj की बात Women of the Year in association with Hakimi Paints, Hakimi beautiful homes where you can come shop and make your home, your any of your offices look pretty and beautiful because they have paint, they have furniture, they have home furnishing, they have everything which can make your home look pretty and beautiful. Also want to thank Hayat Couture by Nikki Rangunwala, one of the best designers in Nagpur city and making women look beautiful, and do a lot of shopping at her store. Please go and shop at Hayat Couture by Nikki Rangunwala. मेरी आज की जो मेहमान है, she is into the business of social media, into the business of digital marketing, helping people with software, with ERP, and with making their business grow and also their life. Please welcome my guest today. My today is a Women of the Year. Please welcome Tejaswini Bhandarkar. Hi Tejaswini. Hi. How are you? I am doing really nice. And after a very very long time, Tejaswini is finally behind the camera. है ना? Yes. Yes. So how's life, Tejaswini? Life is going really well. I am exploring new things and learning so many things. So nice. Tejaswini, when you were a child, when you were seeking career, thinking of making a career, and when you were studying, what was the dream? What was in the bucket list? What was in the eyes? What you wanted to become? I want to be an engineer as I am very tech savvy, right? I love phones, computers and all. So पहले से ही that was clear कि I want to do something in the engineering field. And मेरा masters, मेरा BE भी मतलब computer technology में ही हुआ है. And जो मुझे बहुत मतलब my passion got converted into profession, I must say. So yeah. So but then this when we talk about this profession of digital marketing, software, ERP, और अगर हम इनको हिस्सों में बात करें, so first we talk about digital marketing. Yes. With changing times, people make want to promote and not follow the traditional ways of promoting a project or a service. So they opt for digital media marketing. Yes. When you think about digital media, promoting things on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, how difficult, how reasonable it is to promote anything on this particular platform? Yes. First of all, thank you so much for asking this question. I would love to answer that digital marketing is very very vast field. हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं कि digital marketing यानी सिर्फ social media marketing होता है. There are more than 100 plus types of digital marketing. Only few types which I know and we work in 50 plus types, but there are many more out there. जैसे social media marketing is a type of digital marketing. ऐसे social media platforms आप देखोगे तो 20 to 50 very good popular social media platforms are there, right from Facebook, Twitter, Bloggerspot, Pinterest, Snapchat, many more. अब हर जगह पे based on your target audience profiling होता है, ads होता है, SEO होता है, right? So these are the parts, right? So I would love to share few domains of digital marketing. First is social media, second is SEO जो आपको top में आने के लिए search engines में help करता है. Third is e-commerce जिससे आप sell out कर सकते हो e-commerce platform से. Ads होता है जिनको day one से inquiries चाहिए, they have to run as many number of ads on online platforms. It helps in inquiry generation. The most popular way is PR. PR यानी for example it helps in brand building. ब्रांड इमेज एंड ऑल, उसके भी वेराइटी ऑफ टाइप्स होते हैं, राइट? तो ये कैटेगरी हो गई. देन व्हाट्सएप, SMS, वॉइस कॉल मार्केटिंग, देयर आर मेनी मोर एंड नंबर ऑफ टाइप्स वाया व्हिच यू कैन टैप योर टारगेट ऑडियंस. आई मस्ट से राइट टारगेट ऑडियंस एंड यू कैन रीच आउट टू देम. But then there is a lot of misunderstanding, or there is a lot of grudge, there is a lot of unhappiness around this world of social media marketing, because an agency is only being objectified in a manner कि ये पैसे लेने आ जाते हैं, पर जब सही तरीके से प्रमोट करने की बात आती है
तो ये प्रमोट नहीं कर पाते। वो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला है वो तो यार बिजनेस दिलाता है लोगों को। ये मैडम जो है ये सिर्फ आती है और बताती हैं सर इतना बिल हो गया, इतना आपको पे करना है, और हम तो कुछ देख ही नहीं पाते, हमारा तो कुछ प्रमोशन ही नहीं हो रहा। राइट, सो आई वांट टू क्लैरिफाई इट आउट कि क्या रहता है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ये अजम्पशंस है कि अभी शुरुआत किया एंड तुरंत रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। खाना टाइप नहीं है कि खाने को भी ठंडा करना पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ। और अगर आपको डे 1 से रिजल्ट चाहिए ना, जब कुछ क्लाइंट्स रहते हैं डे 1 से मेरे को इंक्वायरी चाहिए, तो हम सैग्रीगेट करके बताते हैं एड्स ही इसका सॉल्यूशन है। आपको डे 1 से इंक्वायरी आएंगी, आपको डे 1 से सेल चाहिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाओ। अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो बेसिकली सोशल मीडिया पे हम क्यों आते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए। तो यू ऑल्सो नो कि ब्रांड बिल्ड के लिए इट टेक्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल्सो हैव build your brand and it takes a time of years. It's not a time within 1 month and not a journey of 6 months and all. But आप consistently कुछ years अगर आप कर रहे हो 3, 4, 5 years, तो you will go, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि your brand will get existed, very influential. राइट, सो जितने लोग भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं ना, वो किसी भी एजेंसी से करवाए। गाइज आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट, आपकी मार्केटिंग जो है ना, आपको जो रिजल्ट्स है 3-4 इयर्स बाद ही आएंगे ड्यू टू कंसिस्टेंट अप्रोच, क्योंकि हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग हैं, कितना सारा ऑडियंस है, तो टारगेट करना या सबको टैप करना विद इन फ्यू मंथ्स की जर्नी हो ही नहीं सकता है। So you have to understand the crux. We have to be consistent for few years, and उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो definitely strategy में गलती है। But whichever brand I have seen, आप देख लीजिए कि जिन्होंने 1, 2, 3 साल किया है ना मार्केटिंग, they are existing at a very good level in their online platform, right? In branding. बहुत सारे लोग तेजस्विनी भंडारकर की तारीफ करते हैं इस बात को लेकर कि वो बहुत प्रोफेशनल हैं, काम को लेकर उनका एक बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, काम के अलावा वो कोई बात नहीं करती, कुछ डिस्कस नहीं करती। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बड़ा ऑफेंसिव भी लगता है, ये काम के अलावा कुछ बात ही नहीं करती। इसको किस तरह से देखती हैं खुद तेजस्विनी? आई मस्ट से ऐसा नहीं है, मतलब आउट ऑफ वर्क ऑल्सो आई यूज टू टॉक, आई ऑल्सो हैव अ गुड पर्सनल लाइफ, आई डू हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी कलीग्स एज वेल। तो ऐसा नहीं है, बट कैसे जो आई एम वेरी पर्टिकुलर, विद इन 10 to 8 PM मेरा पूरा काम का ही ये रहता है, एंड उसके बाद जो चीज़ें रहती है उसके बाद आई एम आउट ऑफ माई प्रोफेशनल जोन, राइट। नहीं, बट आपके दिमाग में तो चलता रहता है ना, ये मेरा क्लाइंट बन सकता है, वो मेरा क्लाइंट बन सकता है। नो, तो चलता है नहीं, ऐसा चलता नहीं है। आई एम वेरी विजनरी एंड आई वुड लव टू टेल यू कि हाँ, मेरे को आईटी कंपनी एकदम सॉलिड लेवल की, जस्ट लाइक गूगल हैज टैप एवरी टेक्निकल डोमेन, राइट? आई वांट टू टैप दैट ईच एंड एवरी टेक्निकल डोमेन। तो जो मेरा पर्सनल टाइम रहता है, तो आई यूज टू लर्न, एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी, व्हाट आर न्यू ट्रेंड्स, हाउ द फ्यूचर विल बी एंड हाउ वी आर गोइंग टू अडैप्ट इट, ऐसा दिमाग में रहता है। बट येस, आई मस्ट से आई एम वेरी concerned person to my family. I'm very good cook as well. I'm a coffee lover too. I'm pet lover too. I do have pets. तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे पास समय रहता है। But हाँ, when it comes to professional platform ना, I am very particular to my ethics and professionalism, क्योंकि अगर हम professionalism maintain कर रहे हैं तो client will do client, and हम लोग भी उतने अच्छे से delivery दे पाएंगे। अगर वो भाईचारा वाली बात हो जाती है ना, तो वो प्रोफेशनलाइज्म नहीं रहता, तो वो एथिक्स भी कहीं ना कहीं डिलीवरीज ये वो हैम्पर होते हैं। सच बिल्कुल सही। दिस इज माय गाइडेंस टू मी एंड माय टीम एज वेल कि व्हेनेवर वी आर इन आवर ऑफिस ड्यूरेशन, वी आर पर्टिकुलर प्रोफेशनल विद इन आवर डीलिंग्स। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट डू यू थिंक? इट्स गोइंग टू बूस्ट, आई मस्ट से वेरी एक्सपोनेंशियली, बट उसके जो पार्ट्स है ना, या जो अभी पिक्चराइजेशन है, डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू चेंज। एज यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज एंटर्ड, सो इट इज मतलब, इज इट अ थ्रेट टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज? No, it's not at all. Ulta, it will be the supportive one to it will be supportive one to digital marketing agencies and companies, every company, tech company out there. But जो जिसमें हम अभी हम लोगों के दिमाग में रहता है ना कि सोशल मीडिया ही डिजिटल मार्केटिंग है, नहीं। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरवेंशन से बहुत सारे ऐसे डोमेन्स खुल गए हैं, राइट?
फॉर एग्जाम्पल PPC है, डेटा निकालना है कि एग्जैक्टली राइट टारगेट ऑडियंस का डेटा इज देयर, सिर्फ टारगेट ऑडियंस के फोन नंबर्स डाल दो, यू कैन डिस्प्ले देम देयर एड्स एंड ऑल. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ब्रॉट अ वेरी न्यू एक्सपोनेंशियल डोमेन टू डिजिटल मार्केटिंग विच विल गिव यू 100% गारंटीड रिजल्ट्स. पहले होता था ना बिफोर 4 years कि हाँ हम एड तो दिखा देंगे सबको, राइट, बट मतलब कितनी इंक्वायरीज आएंगी, कन्वर्जन्स हम गारंटीड नहीं करते. बट अगर आप अभी डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हो, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर की अगर लिस्ट दे रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल इंटीरियर, आर्किटेक्ट्स, रियल एस्टेट, नो मैटर एनी डोमेन विच यू आर टारगेटिंग, तो अभी फेसबुक एड्स में भी हो गया वाया फोन नंबर्स ऑल्सो यू कैन टारगेट दिए. तो आपके अगर एग्जैक्ट कस्टमर का हम डेटा डाल रहे हैं तो एग्जैक्ट राइट टारगेट ऑडियंस तक हम जा रहे हैं, तो यू नो कि कन्वर्जन्स इन हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू इंक्रीज. So artificial intelligence is not a threat, it is it will help digital marketing to grow in a very exponential way with guaranteed results. पॉडकास्टिंग का फ्यूचर क्या है? Podcasting, this is the respective trend and I must say I am also supporting it a lot. एक्चुअल में अगर अभी तुम देखोगे तो वीडियोस आर गोइंग टू वायरल, राइट. तो पहले रील्स का ट्रेंड आया, फिर पॉडकास्ट का आया, तो पॉडकास्ट का भी ट्रेंड है, तो वी हैव टू अडॉप्ट इट, वी हैव टू पार्टिसिपेट इट एंड जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करना है. लेकिन हाँ, ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग इन मार्केटिंग मीडियाज, तो हो सकता है पॉडकास्ट के बाद देयर माइट बी सम न्यू वेंचर और ना सम न्यू थिंग विल बी कमिंग. वी हैव टू अडॉप्ट, वी हैव टू लर्न एंड वी हैव. मैं सही कर रहा हूँ ना? 100%. You are the brand, I must say. No. But am I on the right path? Yes. ये जो ऑर्गेनिक बिल्ड करने की सोच है या करने की जो कोशिश है, how do you see that? It is for long term, right? It's for long term usage, right? अगर आप कंटेंट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म जर्नी अपनी बना रहे हो, ठीक है. आप एड्स रन कर रहे हो तो आप कुछ ही चंद के लिए आपकी इंक्वायरीज ये कर रहे हो. द वे यू आर डूइंग, तो यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड विद द रिस्पेक्टिव वेरी क्वालिटेटिव न्यूएस्ट कंटेंट ईच टाइम. तो आप कंटेंट स्ट्रेटेजी इतनी भरमार लगा रहे हो अपने हैंडलर पे कि हर बार कोई भी बंदा आएगा या जुड़ेगा आपके हैंडलर से तो उसको नई चीज ही मिलने वाली है, तो people will not get bored. So that is the awesome content strategy you are applying on your handler. I do try it for our handlers and our client handlers as well. Yes. ये जो जर्नी है जहाँ पर अलग अलग किस्म के क्लाइंट से मिलना है, अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्लाइंट से मिलना है और सबको केटर करना है विथ ऑल्सो सेटिस्फाइंग द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दे हैव. हाउ डू यू मैनेज दिस? हाउ डू यू मैनेज दिस? Yes, मैं हमेशा कहती हूँ अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता. यू नीड अ राइट टीम टू सपोर्ट यू. सो आई डू हैव अ ग्रेट टीम बिहाइंड मी which helps me to cater all these needs in a satisfactory level. Plus हम क्लाइंट को भी एजुकेट करते हैं, राइट. मतलब जो भी हमारे यहाँ क्लाइंट ऑनबोर्ड हो रहा है, मतलब बहुत बार मनीषा रहती है मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को शुरुआत से ही 100 लीड्स ये वो आएगी. तो वी ग्रेजुअली एजुकेट क्लाइंट की भाई पहले प्रोफाइल बनेगी, पहले बेस बनेगा, ठीक है, देन विल मार्केट इट. शुरुआत में सारी लीड्स कन्वर्ट नहीं होती है, पहले क्यूरियोसिटी वाली आएगी, उसके बाद ही आएंगी. वी हैव टू अडैप्ट एंड वी हैव टू कैटर ईच एंड एवरीवन. तो वी एजुकेट द क्लाइंट्स एज वेल, प्लस वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवरसेल्फ एज वेल. एंड हर किसी से पर्सनली बोलूँगी तो माई टीम यूज टू हैंडल, ठीक है, जब बहुत मेजर इशू या कंसर्न रहता है देन आई यूज टू टेक केयर. बट वॉट एवर थिंग, मतलब each client feedback work as a what review for us, है ना. and generally हम लोग every month we used to take feedback whether it's good or bad because it helps us to improvise ourselves and it helps us to align with our clients, है ना. कहीं अगर कम्युनिकेशन गैप है या हमारा assumption है या उनकी सोच है तो एक अलाइनमेंट के लिए it helps us. So क्या लगता है ऐसा कई बार तेजस्विनी को कि यार ये क्लाइंट के लिए मैंने इतना किया फिर भी बातें सुना रहा है? तो ऐसा तो एवरी डोमेन में होता है, एवरी क्लाइंट इज अ गॉड, राइट. तो आप ये सिर्फ मार्केटिंग या आईटी इंडस्ट्री का नहीं, आप कोई भी इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री का देखिए, क्लाइंट है, पैसा देगा, तो ऑब्वियसली ही हैज सम एक्सपेक्टेशंस, राइट. तो वो उनको कैटर करवाना रहता है. कुछ बार हमें उनको एजुकेट करना रहता है, कुछ बार हमें उसको अचीव करना रहता है. तो वी टेक इट ऑलवेज एज अ पॉजिटिव वन. वी टेक इट
एज या क्लाइंट इज ऑलवेज अ गॉड. अगर वो बोल रहा है ये चीज गलत है तो वी क्रॉस रिवाइज की हो सकता है हमसे गलती हुई होगी. इट हेल्प्स अस टू इम्प्रोवाइज आवरसेल्फ एज वेल. सो क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक ऑलवेज हेल्प्स, ऑलवेज. A lot of people say that तेजस्विनी के लिए तेजस्विनी के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए आफ्टर शी जॉइंड BNI. Yeah, I must say that because मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था आई स्टार्ट द बिजनेस. बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स एंड आई एम अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर डूइंग जॉब इन MNC. उसके बाद मेरा हो गया था जियो में, बट मेरे को मुंबई शिफ्ट नहीं करना था, तो थोड़ा सा जो गैप आया उसमें आई हैव एक्सप्लोर्ड फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, BNI, मैनी मोर थिंग्स. एंड एक बार जो BNI का बात था, द मोर पिक्चर गॉट क्लियर इन माई माइंड रिलेटेड टू द बिजनेस एंड विच आई वॉन्ट. My passion, which is converted into profession. So I started step by step. I learned the discipline, and I seriously thanks Riddhi and Bhavesh because the discipline they teach, the BNI trainings are like that. It helps you to train your mind. Absolutely. And trainings in matlab which helps you to discipline yourself and your business in a very professional way. I must say it helps me a lot. So you are in a chapter called Hematite. Yes. और मैंने ऐसा सुना है हेमेटाइट छोड़ रही है, ये कितना सच है? It's not like that. I'm the founder member of that. अभी मेरा 5th renewal will be there, so I love my. ये रूमर्स है कि आप छोड़ रही हैं. No, it's my chapter and I loved it. Right. So yeah, and कैसे एक bonding भी हो जाती है. This is the market which I want to tap as well. So I loved it. अच्छा, एक और बात जो सुनाई में आई है कि तेजस्विनी बहुत जल्द शादी करने वाली है, ये कितना सच है? हाँ, तो ये भी है क्योंकि अभी माय प्रोफेशन हैज बीन सेटल्ड टू अ सेमी ऑटोमेटेड लेवल, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम टू गो फॉर दैट. द सर्च इज इन प्रोग्रेस, सो वेरी सून आई विल गिव यू द गुड न्यूज़. आपके पेरेंट्स आपका ये काम कैसे देखते हैं? हाउ मच दे अप्रिशिएट यू? Yes, they supported me a lot क्योंकि I am being from a service background and started the business at respective age. So my mom, my brother, my dad, right, every time they supported me. मुझे मेरे घर वालों ने कभी ये बोला ही नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ. तो हर चीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन करती गई, गलत होता गया सुधारती गई, सीधा करते गई, एंड द प्रोसेस स्टार्ट. मैनी ऑफ पीपल आर वेरी वेरी विजनरी, बट बहुत बार होता है ना, लोग हमें बोलते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, तो दिमाग में वो चप जाता है. सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे जितने भी बिलोंगिंग है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, कलीग्स है, क्लाइंट्स है, नो वन सेड मी कि ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये सुनना नहीं अच्छा लगता है एंड आई लव टू कीप ट्राइंग. सो दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव. एंड अगर रियल इसमें देखा जाए तो आपके घर से ही आप बनते हो, है ना? तो द एथिक्स विच आई फॉलो, द मॉरल्स आई फॉलो एंड द काइंड ऑफ थिंग आई एम डूइंग, सो माई ब्रदर, माई मॉम एंड माई डैड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर. दे सपोर्टेड मी टू द what I can say to the various extent. So the name of your company is TazeTech. Yes, it's TazeTech. है ना? तो TazeTech के साथ एसोसिएशन करने में किसी भी एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? Why should he or she make TazeTech a part of their business, their marketing team? Yes. It is our tagline. आपका प्रॉब्लम, आपका बजट, आपका विजन, हमारा सोल्यूशन. सो विद इन योर बजट, विद इन योर विजन, राइट, विद इन व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वी विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन. क्योंकि हमने इतने एक्सपेरिमेंटेशन किए ना, राइट फ्रॉम मिनी वेबसाइट टिल द रिस्पेक्टिव डिजिटल ब्रोशर वी कैटर इन ईच वर्टिकल इन वेराइटी ऑफ प्राइसेस. आई मस्ट से बस क्लाइंट में पेशेंस होना चाहिए, उसको हम बताते भी है कि ये चीज़ है. तो ये तीनों चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं. आप अगर प्रॉब्लम बताते हो, आपका विजन बताते हो, फॉर एग्जाम्पल योर प्रॉब्लम इज कि आई वांट टू जस्ट टैप महाराष्ट्र, ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर विजन. आपका प्रॉब्लम है कि मैं नागपुर तक तो पहुंच रहा हूँ, बाकी के लोगों तक कैसे हम पहुंचा जाए जो पोटेंशियल ये है. एंड यू विल टेल योर बजट, मेरा 5,000 है, 10,000 है, 50 है. बेस्ड ऑन दैट आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए. आपको टेलीग्राम मार्केटिंग करना चाहिए, आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहिए, आपको डेटा लेना चाहिए, राइट, आपको एसईओ करना चाहिए, एड्स करना चाहिए. सो मेनी थिंग्स आर देयर इन टेक्नोलॉजी, इन मार्केटिंग डोमेन, तो वी प्रोवाइड दैट. सो इफ यू आर एसोसिएटेड विद अस, तो आपको ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होगी. आपका रियल टाइम होता है क्या? डू यू हैव रियल टाइम? इज तेजस्विनी भंडारकर busy sometime in life making reels and all? I used to
make, generally it's a part of protocol and discipline as well. I want to share the knowledge. बहुत बार ना assumptions डिजिटल मार्केटिंग को लेके, आईटी इंडस्ट्री को लेके, तो आई बिलीव कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, टाइम निकाल के मैं ऐसे टॉपिक्स पे मैं रील बनाऊंगी. जैसे रिसेंटली आई हैव मेड कंटेंट वर्सेस एड्स व्हिच वर्क बेस्ट फॉर द बिजनेस, है ना. तो आई लव टू शेयर दैट नॉलेजेबल ब्रांड अवेयरनेस रील्स. A lot of people get recognized with their reels, with their pages, and they themselves are being so-called influencers, and they get all the credits of it. Yeah, content creators. But generally, the team which is behind these people are people like you who own such companies, who give services, especially people for social media. Do you feel bad at time that उनको recognition मिल गया, मुझे नहीं मिला? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्लाइंट ग्रो हो रहा है ना, तो हमारा बजट बढ़ रहा है. सो वी आर सो हैप्पी इफ क्लाइंट इज बीइंग द ब्रांड. ठीक है, क्योंकि एट द टाइम्स इन योर बिजनेस रिकॉग्निशन डजंट मैटर. मतलब मैटर करता है, बट वो रिकॉग्निशन क्लाइंट अप्रिसिएशन से कंप्लीट हो जाता है. व्हाट्स द अदर रिवॉर्ड? एग्जैक्टली. इफ यूर अगर आप मेहनत कर रहे हो एंड आपका क्लाइंट अप्रिशिएट कर रहा है, यार ये बहुत अच्छा हुआ एंड आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड, दैट इज द बेस्ट रिकॉग्निशन फॉर अस. प्लस दैट क्लाइंट recommends us to 10 respective people, so that is again increase in your business. इससे ज्यादा recognition अपने काम के लिए, तो I deserve this कि this is the best reward for me and my team. अगर ऐसा हो रहा है तो टीम्स भी कई बार बदलती हैं वक्त के साथ. बहुत सारे लोग नए आते हैं, बहुत पुराने लोग छोड़ के जाते हैं. तो जब पुराने लोग छोड़ के जाते हैं, तब तेजस्विनी का मन क्या कहता है? सर, इट्स अ साइकिल, राइट. तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. इवन आई टू, राइट. मैंने मेरी कंपनी जब स्टार्ट करी तो आई स्टार्टेड विद वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर, बट नाउ सबसे ज्यादा मेन चीज हम लोग करते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. अनदर वर्टिकल्स भी बहुत है. आई हैव साइमल्टेनियसली 3 more companies. टेस्टेक इंटर्नशाला, टेस्टेक इवेंट्स, टेस्टेक कम्युनिटी, टेस्टेक शो. हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. सो इट्स अ साइकिल, राइट. बट जो लॉन्ग टर्म रिलेशंस रहते हैं, आप जिनके साथ काम कर लेते हो, वो तो हमेशा मेंटेन ही रहते हैं. बट येस, इफ देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आउट देयर, तो हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन है कि वी गिव प्रॉपर फेयरवेल टू द रिस्पेक्टिव पर्सन, सो दैट वी मेक श्योर कि डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर बोथ ऑफ अस टू वर्क टुगेदर. एंड जब भी कोई नया पर्सन इंडक्ट होता है, तो वी हैव अ गुड इंडक्शन सेरेमनी एज वेल. वी होल induct him or her in a very good way, and एक फेलिसिटेशन का, एक रिकॉग्निशन का भी पार्ट रहता है, which helps the newcomer to gel up with the team. तो ये 2 चीजें हैं जो हम फॉलो करते हैं whole heartedly, and yes, things are on good terms. अब आगे क्या? What's in the bucket list? Personal, professional. Personal तो शादी करनी है. Professional क्या है? Professional में I am working out on few products, so I will be launching few products really very soon. Yes. And that product is mean by Tastech? Yes. Your company? Yeah. Right now we are from service background, right? तो मैं बहुत ज़्यादा explore कर रही थी product industry में, IT industry. Anything related to the technology is my cup of tea. So we are working out on it. So you will got to know when very soon we will be launching that as well. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता, तेजस्विनी भंडारकर, with what, double W? Yes. And double R. हाँ. ये क्यों किया वैसे? एक्चुअली क्या हो रहा था कि one of our client numerologist, they suggested me कि ये करके देखो, you will get wonders of results. उसी के बाद इनकम टैक्स की रेट पड़ी आपके यहाँ? Oh sir, please. No, I haven't received it. We are very prompt with our GSTs. No, मजाक करो. But benefits मिले क्या वो नाम बदलने के? I do believe on energies, and when energy flows, it gives you results, and it's a science. Numerology, astrology is a science, and my majority of clients are from that domain as well. So yes, results are there. It's on your belief how you are feeling the energy, but yes, I feel it in a very positive way. Okay. So big thumbs up for that. अरे सुपर. तो फिर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता, तेजस्विनी भंडारकर.
उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें, फॉलो करें? ग्रेट होप्स मेक्स ग्रेट मैन, दिस इज द टैगलाइन. मैंने मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल राइट, तो ये एक बोर्ड पे लिखा हुआ ये था राइट. तो आई यूज्ड टू रीड इट आउट एंड डेली, एंड इट्स माय फेवरेट कोट. सो आई डू बिलीव ऑन इट राइट, क्योंकि अगर आपकी सोच ही नहीं है तो आप उतना ऊंचा उड़ ही नहीं सकते, या उतनी हिम्मत भी रिस्क टेकिंग नहीं रहता है. तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट कोट एंड द सेइंग व्हिच आई ट्रूली बिलीव एंड आई फॉलो इट एथिकली एज वेल. सो या मैम, उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, आप ऐसी ही तरक्की करती रहें. आप ना ही सिर्फ नागपुर की लेकिन महाराष्ट्र की और देश की सबसे बड़ी डिजिटल मीडिया कंपनी और सबसे बड़ी आईटी कंपनी बने, जो आईटी सर्विसेज और आईटी सॉल्यूशंस दे, और आपका काम यूके तक पहुंचे, है ना. आप वहाँ पर भी अपने आईटी प्रोडक्ट्स और ईआरपीज क्लाइंट्स आपको मिलें जो आपके काम को सराहें और आपके साथ एक अच्छा एसोसिएशन करें. आप इस शो पर आई, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me here. सुपर, थैंक यू सो मच. तेजस्विनी भंडारकर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. एक बड़ा अच्छा शेर है और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा पसंद भी आएगा कि मुकद्दर के खेल में एक ऐसा भी कायदा हो, मुकद्दर के खेल में एक ऐसा भी कायदा हो, जिनकी देर से किस्मत खुले उनका डबल फायदा हो, है ना. तेजस्विनी भंडारकर उनमें से हैं जो अपने काम से, अपने सोल्यूशन से, अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को राहत देने का काम करते हैं. आपके पास इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन कस्टमर नहीं है, तेजस्विनी है. आपके पास इतना अच्छा कंपनी है लेकिन सिस्टम्स नहीं है जगह पे, आईटी सिस्टम्स नहीं है, तेजस्विनी है. कोई चीज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो खरगोश की चाल चलती है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कछुए की चाल चलती है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खरगोश और कछुए की रेस में जो सबसे पहले आया था उसके बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं की जाती. वो थी बिल्ली. बिल्ली सबसे पहले पहुंच गई थी, है ना. उनकी रेस शुरू हुई और बिल्ली दौड़ी और पहुंच गई. लोगों ने बोला यार तू तो रेस में ही नहीं थी, लेकिन उसने बोला मैं हर रेस में रहती हूँ क्योंकि मुझे सबसे आगे पहुंचना है, सबसे तेज पहुंचना है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेजस्विनी को बिल्ली चला रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कुछ लोग वाकई में सोल्यूशन के साथ हमें मिलते हैं, एंड तेजस्विनी भंडारकर इज़ वन ऑफ दोज पीपल. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बनना भी बड़ा मुश्किल है. ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी स्टडी है, आपका रिसर्च है, वही आपको इतना तेज बनाता है और इतना तैयार बनाता है. उम्मीद है ऐसी तैयारी अगर आप अपनी बिटिया में देख रहे हैं तो समझिए वो तेजस्विनी भंडारकर बन रही है ना. अपनी बिटिया के जीवन में तेज लाएं, उसे तेजस्विनी बनाएं, उसे तेजस्विनी भंडारकर बनाएं. जिंदा रहें. जय हिंद.